جی دوستو، طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ اردو کی کلاس میں اپنے بہت سارے ٹاپک کو ایک ہی ویڈیو میں کور کریں گے۔ آپ لوگ آخر تک بنے رہیے گا۔ جتنے ٹاپک آپ کو اسکرین پہ دکھ رہے ہیں یہ سب آپ کے سلیبس کا حصہ بھی ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں علم عروض، علم اعداد، اسی کے ساتھ علم ہجا، حروف تہجی، حروف شمسی و قمری۔ اس کو میں آج ٹرک کے ساتھ بتاؤں گا۔ اس ٹرک کو یاد کرنے کے بعد آپ کبھی حروف شمسی اور قمری میں کبھی کنفیوزنگ نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ رموز و اوقاف، یعنی جس کو آپ پنکچویشن کے نام سے جانتے ہیں، اس کی ساری قسموں کو ہم لوگ دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ مثالوں کو بھی دیکھیں گے۔ پھر آگے کیا ہے، مرکب الفاظ کیا ہیں، مخارج کیا ہیں، اعراب کیا ہیں۔ دیکھیے یہ سب ٹاپک آپ کا جو سلیبس ہے، چاہے پیپر فرسٹ ہے پیپر سیکنڈ، سب میں یہ ٹاپک داخل ہے۔ دیکھیے علم ہجا ہے، حروف شمسی و قمری ہے، اور علم صرف نو پچھلی کلاس میں آپ کا ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ علم عروض باقی تھا، وہ بھی آج کمپلیٹ ہو جائے گا، اور علم اعداد بھی آج کے کلاس میں آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آگے حروف تہجی کیا ہے، مخارج کیا ہے، اعراب کیا ہے، مرکب الفاظ کیا ہیں، ان سب چیزوں کو آخر میں کیا ہے، رموز و اوقاف، ان سب ٹاپک کو آج کے کلاس میں کور کر لیں گے اور ہمارا سلیبس تقریباً پورا ہو جائے گا۔ صرف ایک ٹاپک بچے گا، اردو زبان کی مبادیات۔ اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ کا یہ جو 24 نمبر کا یہ آئے گا اردو زبان سے، پورا آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر آپ کا بچے گا میتھڈولوجی، وہ بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں پڑھاؤں گا۔ دیکھیے یہ جو آپ کا سلیبس ہے یہ پیپر فرسٹ کے لیے نہیں، پرائمری لیول پہ، اپر پرائمری کا دیکھیں گے اس میں بھی وہی سارے ٹاپک داخل ہیں، بس صرف آگے ادھر ادھر صرف ہو گئے ہیں اور بقیہ سارے ٹاپک سیم ہیں۔ دیکھیے اس میں رموز و اوقاف اس میں آخر میں ہے۔ تو آپ چاہیں پرائمری لیول کے لیے بھر رہے ہوں یا اپر پرائمری کے لیے، پیپر فرسٹ ہو سیکنڈ ہو، آپ دونوں کا سلیبس ہے۔ اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے بعد اس میں کوئی کنفیوزنگ آپ کی نہیں رہے گی۔ آخر تک بنے رہیے گا، تھوڑا سا ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نظام اکیڈمی 22 کر کے ٹیلی گرام چینل بنا ہے، اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، اس پر کلک کر کے آپ جڑ جائیں، اس پر آپ کو لنک مل جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، آپ لائک بھی کریں، اسی کے ساتھ کمنٹ کریں، کوئی مشورہ ہے اس میں آپ لکھیے، ٹھیک ہے، اس پر انشاءاللہ عمل کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنا جو آپ کا گروپ ہے، چاہے آپ ڈپلومہ کے ہوں یا بی ایڈ کے، اپنے کامن گروپ میں بھیج دیں تاکہ آپ اچھے سے آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھی تیاری کر سکیں، ٹھیک ہے۔ چلیے وہاں تو آپ نے دیکھا اتنے سارے ٹاپک، اس کے علاوہ سب ٹاپک کو بھی ہم لوگ اس میں کور کریں گے۔ جیسے علم ہجا، حروف تہجی، اسی کے ساتھ مفرد ہے، مرکب ہے، اور حرکت کیا ہے، جزم کیا ہے، زبر زیر پیش کیا ہے، علامت کیا ہے، تنوین کیا ہے، الف مقصورہ کیا ہے، الف ممدودہ کیا ہے، یاء ملفوظہ کیا ہے، یاء مخففہ کیا ہے، واو معروف کیا ہے، واو مجہول کیا ہے، واو معدولہ کیا ہے، یاء معروف کیا ہے، یاء مجہول کیا ہے۔ بہت سارے ٹاپک کو آج کی کلاس میں ہم لوگ کور کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ایک ایک کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے علم عروض۔ علم عروض، دیکھیے اشعار کو وزن پر تولنا علم عروض کہلاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی جب شعر ہوتا ہے اس کا ایک وزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی وزن پر اس کے قافیہ اور ردیف آتے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا فعول فعول فعول، مفعول مفعول مفعول، یہ سب کیا ہے، یہی علم عروض، یہی اس کے وزن ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے جو ہے اسی کے ذریعے ہم شعر اور نثر میں تمیز کر پاتے ہیں۔ تو
देखिए हम टू द पॉइंट देखेंगे जो हमारे सवालात पूछे जा रहे हैं। इल्म उरूज के कुल कितने औज़ान हैं? 19 यानी 19। इसको आप याद रख लीजिए कि इल्म उरूज के 19 औज़ान हैं। इसके 3 रुकन हैं, पूछा जा सकता है कितने रुकन हैं। एक सबब है, एक वतद है, एक फासला है। 3 रुकन याद रखिएगा, एकदम टू द पॉइंट चीज़ें हम लोग देखते चल रहे हैं। अब देखिए इल्म उरूज में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। एक है इन अरकान से बहरें बनती हैं। जो अरकान है इससे इनकी बहरें बनती हैं जिसके ज़रिए अशआर का वज़न तौला जाता है। पहला क्या है? सबब। सबब क्या है? पहला हर्फ मुतहर्रिक, मुतहर्रिक मतलब जिस पे हरकत पाई जाए, और दूसरा साकिन यानी जज्म हो। जैसे उस में अलिफ क्या है? अलिफ आप देख रहे हैं आपका मुतहर्रिक है, और सीन क्या है? साकिन है। जैसे उन, अलिफ क्या है? अलिफ जो है मुतहर्रिक है, दूसरा नून क्या है? साकिन है। दूसरा वतद है। वतद में क्या होता है? पहला और दूसरा हर्फ मुतहर्रिक यानी उस पर हरकत पाई जाती है, तीसरा हर्फ साकिन। इसकी मिसाल देखिए, जैसे कलम, काफ पे क्या है? हरकत है। लाम पे क्या है? हरकत है। मीम पे क्या है? सुकून यानी साकिन है, जज्म है। इसी तरह वतन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? वतद कहेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है? फासला। फासला क्या है? इसका इस्तेमाल उर्दू में नहीं होता, ठीक है, और आप पर्शियन में जाएंगे या फिर इसी के साथ अरबी में, उसमें होता है। चलिए एक टॉपिक आपका क्लियर हुआ, कौन सा? इल्म उरूज, और इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सवालात आएंगे। आगे हम देखेंगे इल्म आदाद। आपने सिलेबस में देखा होगा इल्म आदाद, यानी आदत का इल्म रखना भी आपको ज़रूरी है। हम इल्म आदाद को देखेंगे। हर हर्फ तहज्जी की कीमत मुकर्रर है। जो जितने हर्फ हैं, अलिफ बा जीम ता, सबकी एक कीमत है, ठीक है, जिससे उमूमन तारीख़ है, पैदाइश है या तारीख़ संग बुनियाद अख़ज़ किया जाता है, उसको इल्म जुमल भी कहते हैं। याद रखिएगा, इल्म आदात को क्या कहेंगे? इल्म जुमल भी कहते हैं। तमाम हुरूफ के आदाद इस तरह मुकर्रर हैं जैसे हम देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप एक मरतबा समझ लीजिएगा। अलिफ़ है, अलिफ़ के साथ एक अदद 1 है, बे के साथ क्या है? 2 है, जीम के साथ 3 है, दाल के साथ 4 है, हा के साथ 5 है। देखिए तरतीब बदल जा रही है। हा आखिर में आता था ना, लेकिन यहाँ हा के साथ क्या है? 5 है, वाव के साथ 6 है, और ज़ा के साथ 7 है, और हा के साथ 8 है, तो के साथ 9 है, या के साथ यानी छोटी या के साथ 10 है, और बड़ी या के साथ, और काफ के साथ 20 है, लाम के साथ 30 है, मीम के साथ 40 है, और नून के साथ 50 यानी 50 है। सीन के लिए अदद क्या है? 60 है। ऐन के लिए 70 है। फे के लिए क्या है? 80 है। स्वाद के लिए 90 यानी 90 है। और काफ यानी बड़ा काफ, जो काफ जो हलक से निकलता है, हुरूफ हल्की से, इससे क्या है? 100। और रा के लिए 200। शीन के लिए 300 यानी 300। ता के लिए 400। और सा के लिए क्या निकलता है? यानी 500। और ज़ाल के लिए 700। और वाद के लिए कितना है? 800। और वो के लिए 900। गैन के लिए 1000। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक दो मरतबा रिवीज़न करेंगे तो अगर इससे सवाल आएगा तो इंशाल्लाह सही करके आएंगे। अब इसको हम किस तरह से जोड़ते हैं, एक मिसाल देख लीजिए। जैसे अलिफ़ है, अलिफ़ के लिए कितना? 1 था, हा के लिए 8 था, मीम के लिए 40 था, दाल के लिए 4 था। अब जब ये मिलाएंगे पूरा 1, 8, 40 और 4 मिला करके 53। तो पूछ लिया कि अहमद में कितने अदद होंगे। जैसे पूछ सकता कोई ना, इसके बाद आप निकाल सकते आसानी से, ठीक है। जैसे अहमद, अलिफ हा मीम दाल, तो अहमद में कितना है? 53। तो इस फार्मूले को अगर आप याद रखेंगे, उसको टेबल को, तो आपका कोई भी लफ्ज़ पूछा गया आप फटाफट उसको बता देंगे। इल्म आदाद हो गया, 2 इल्म आपने कंप्लीट कर लिया, एक इल्म उरूस, इल्म आदाद। अब हम देखेंगे रुमूज़ व औक़ाफ़। रुमूज़
اوقاف जिसको इंग्लिश में आप पढ़े होंगे क्या, पंक्चुएशन के नाम से, इस एक कहते किसको ये भी देखते हैं, वो ख़ास अलामतें जो इबारत में ठहराव, रवानी और मफ़हूम की सही कैफियत को समझने के लिए लगाई जाती हैं, उन्हें हम रुमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। सलेबस में क्या है, रुमूज़ व औक़ाफ़ है, लेकिन आप कहीं कहीं लिखा हुआ पाएंगे रुमूज़ औक़ाफ़, यानी औक़ाफ़ का मतलब क्या था, रुकना, ठहरना, ठहरने की अलामतें। ठीक है, रुमूज़ औक़ाफ़ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले बन जाएगा। रुमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं, देखो रुमूज़ क्या है, ये रम्ज़ की जमा है जिसके माना है निशानात, जितने हैं निशानात ही तो लगते हैं। औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा है जिसके माना है ठहराव। ठीक है, आगे चलते हैं, रुमूज़ व औक़ाफ़ में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है राबिता। राब्ता क्या है, राब्ता को आप इंग्लिश में पढ़े होंगे कोलन के नाम से। किस नाम से, कोलन के नाम से। कोलन के नाम से क्या पढ़ते हैं, राब्ता। इसको अंग्रेज़ी में कोलन कहते हैं, आप समझ गए। जब किसी का कौल नकल किया जाता, कौल यानी कही हुई बात को नकल किया जाए या किसी इक़्तिबास को लिखा जाए, नज़्म व शेर की तशरीह की जाए, कोई नज़्म है या कोई नस्र है उसकी तशरीह आप करेंगे, ऐसे मौक़ों पर ये अलामत इस्तेमाल की जाती है, कौन सी, राब्ता वाली। इस तरह मिसालों से पहले लफ्ज़ों के माना लिखने से पहले और शेर या मिसरे का हवाला देने से पहले भी इस अलामत को लाया जाता है। आप देखिए, थोड़ा सा मिसाल देखें, जैसे मशहूर किताबें, ये क्या है, मजमूई तौर पे आपने ज़िक्र कर दिया, आगे फिर उसकी तफसील जब आप करेंगे, जब उसकी तफसील बयान करेंगे तो कॉलन लगाएंगे, दो कॉलन, दो नुक्ता, इस तरह से राब्ता लगा देंगे। उसके बाद दीवान गालिब, गुबार खातिर, मुसद्दस वगैरह। ठीक है, आपको पता चल गया राब्ता का यूज़ कहाँ होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोलन के नाम से। आगे चलिए, दूसरा ख़त्मा। ख़त्मा को क्या कहते हैं, जैसे ख़त्मा को कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। ख़त्मा को हम फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं, जैसे इस तरह से लगता है उर्दू में, और इंग्लिश वगैरह में ऐसे सिर्फ एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, ख़त्मा, ये अलामत जुमले के आखिर में लगाई जाती है। अंग्रेज़ी में मुख़फ़्फ़फ़ात में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई बात पूरी तरह पूरी हो जाती है तो फुल स्टॉप हम लगाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अंग्रेज़ी में क्या है, जो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है, उस पर लगते हैं, जैसे MBBS, तो हर एक के बाद क्या है, आपका ख़त्मा लग रहा है, यानी फुल स्टॉप। जैसे MALLB वगैरह। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे वावैन। वावैन को क्या कहते हैं, आप वावैन को कोटेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, कोटेशन। देखिए, इंग्लिश में इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में आप, क्योंकि आपकी एक ज़ुबान इंग्लिश वो भी कंपलसरी है, उसकी भी क्लासें चल रही हैं, तो उसकी भी तैयारी होती जाएगी। क्या कहते हैं, कोटेशन। अब वो ए वावैन इस तरह से इसका यूज़ कहाँ होता है, देख लीजिए। जब किसी का कौल किसी मशहूर शेर या नस्र के टुकड़े को नकल करते हैं तो उससे पहले और बाद ये अलामत लगाते हैं। अब जैसे किसी का कौल नकल कर रहे हैं तो दोनों तरफ से वावैन करके उसको बंद कर देते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे एक वाव कहीं कहीं लगता है। आप इंग्लिश में देखेंगे जब कोई डायरेक्ट स्पीच होती है तो वहाँ भी लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो वावैन लगाते हैं, किसी का मक़ूला लिखते हैं, जैसे शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। अब किसी का मक़ूला है, दोनों तरफ से वावैन करके बंद कर देंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या है, निदाइया और फ़ेजाइया। निदाइया फ़ेजाइया को एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ये अलामत मुनादा के साथ लाई जाती है। जैसे मलीहा, किसी को पुकार रहे हैं, मलीहा, उसके बाद ये अलामत, इसकी अलामत याद रखना हमेशा इस तरह से।
यानी उल्टी छोटी आई इंग्लिश वाली आप बना लेंगे, ठीक है। जैसे मलीहा, तुम किताब लाना मत भूलो। ये अलामत गुस्सा, हक़ारत, हक़ारत यानी जिसको आप नीचा समझते हैं, इस्तेजाब यानी ताज्जुब का इजहार करते हैं, और खौफ के जज्बात के इजहार के लिए भी लगाई जाती है। कहीं आपका खौफ हो रहा है, ऐसे मौके पर इसको फ़िजाइया कहते हैं। जैसे अफसोस, अफसोस, सद अफसोस, उसके बाद जो है फ़िजाइया वाले निशान लगाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन। 4 हमने देख लिया। 5वें नंबर पर सवालिया, तो आपको आसान है, यानी क्वेश्चन मार्क। सवालिया जुमले के आखिर में एक अलामत लगाई जाती है, जैसे तुम कहाँ से आ रहे हो, सवालिया निशान लगा दिया। यह क्या है, सवालिया निशान लगा दिया। कौसैन, कौसैन यानी तीर की तरह, जिसको आप कहते हैं राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। आम तौर पर जुमला मुअतरिज़ा को कौसैन में लिखा जाता है। अब जैसे उर्दू लिख रहे हैं, बीच में कोई इंग्लिश का वर्ड है, उसको क्या कौसैन में हम लिख देते हैं, उसी को जुमला मुअतरिज़ा कहा जाता है। आम तौर पर जुमला मुअतरिज़ा को कौसैन में लिखा जाता है। जैसे मतीन, जिसने दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था, ये जुमला मुअतरिज़ा है। कल शारजा गया, मतीन, उसके बाद जुमला मुअतरिज़ा के तौर पर जिसने दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था, कल शारजा गया, ठीक है। तो इस तरह से बीच में लिख सकते हैं। आगे क्या है? सक्ता। सक्ता, सक्ता को क्या कहते हैं? कॉमा, आपने पढ़ा होगा कॉमा, कॉमा लगाते हैं ना अक्सर जगह, सक्ता यानी कॉमा। वह सबसे छोटा वक्फा होता है, यानी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जिसको हम कॉमा कहते हैं। जैसे आप देखेंगे इस तरह से लगा रहता है कहीं कहीं, ठीक है, यानी उल्टा वाव। वक्फा, वक्फा क्या है? वक्फा आपने सेमी कॉलन पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, सेमी कॉलन। इसकी अलामत ये है, ऐसे ऊपर लगा देते हैं इस तरह से, और नीचे एक डॉट। इसमें सक्ता से थोड़ी ज़्यादा देर तक ठहरते हैं। सेमी कॉलन, सक्ते से ज़्यादा ठहराव को वक्फा कहते हैं। सक्ता में कम, वक्फा में थोड़ा सा ज़्यादा। तफसील, तफसील वही जो आपने अभी देखा था ना, पहला वाला यानी राब्ता, वही तफसील, यानी किसी की तफसील बयान करने के लिए लाते हैं। अलामत आम तौर पर हस्ब ज़ैल को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल, हस्ब ज़ैल यानी एक चीज़ मजमूअन जिक्र किया, उसके बाद उसी से मुताल्लिक़ चीज़ों की जब तफसील बयान करेंगे तो हम कॉलन लगा करके, ठीक है, जिसको आप कॉलन ही कह सकते हैं। चलिए अब हम टेबल की शक्ल में सबकी अलामत देख लेते हैं ताकि हमारा रिवीज़न हो जाए। सक्ता के लिए इस तरह की अलामत है, जुमले में मुख्तसर वक्फ़े के लिए, ठीक है, और वक्फ़ा के लिए इस तरह की अलामत है, सक्ते से किसी कदर तवील वक्फ़े के लिए। राब्ता क्या है? मुफस्सल हम ख्याल मुख्तसर जुमलों को ऐसे ही दूसरे जुमलों से जोड़ने के लिए राब्ता यानी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या है? ख़त्मा, जिसको फुल स्टॉप आप कहते हैं। जुमले के ख़ात्मे पर, पूरा जुमला जब पूरा हो जाता है तो इसका यूज़ किया जाता है। सवालिया यानी जुमले में सवालिया का इजहार करें। फ़िजाइया, जिसको आप एक्सक्लेमेशन के नाम से जानते थे, जुमले में किसी जज्बे या तखातुब के लिए। वावैन, कहने वाले के अपने अल्फाज लिखने के लिए। कौसैन, जहाँ किसी दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ हो। आपको पता है कि वहाँ यानी किसी की वजाहत करनी हो जुमला मुअतरिज़ा, या जैसे आप उर्दू लिख रहे हैं बीच में इंग्लिश का वर्ड लाएंगे तो उसको क्या कौसैन में लिख देंगे, यानी राउंड ब्रैकेट में। समझ में आ गया? थोड़ी मिसालें देख लेते हैं। अब यहाँ पहले जो लिखा अलिफ वाले कॉलम में, इसमें क्या है? अलामतें नहीं हैं। बा वाले में अलामतें हैं, जैसे मेले में मर्द, ठीक है। इसके बाद क्या है? सक्ता लग गया ना, मेले यानी कॉमा,
मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े। एक कायदा यह है कि जब कई लोगों की बातें होती हैं तो हम हर जगह और नहीं लिखते, और की जगह हम क्या लगाते हैं, सख्ता यानी कॉमा लगा देते हैं। जैसे मेले में मर्द, औरतें, बच्चे, और आखिर में और लगा देते हैं, और बूढ़े सभी मौजूद थे। जुमला पूरा हो गया, आखिर में क्या लगा दिया हमने, बताइए क्या है आखिर में? आखिर में हम ख़त्मा लगा दिया, यानी पूरा जुमला पूरा हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया। इस तरह से समझ में आ रहा है? तो ये भी एक तरीक़ा है कि अगर एक ही चीज़ की बातें बार बार हो रही हैं तो हम और या वाह नहीं लिखते, उससे थोड़ा रवानगी में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हम उसकी जगह कॉमा लगाते हैं। आगे क्या है, ज़ुबान, उसके बाद क्या लगा दिया हमने, कॉमा यानी सख्ता। ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है। थोड़ा सा रुकते हैं, ज़ुबान ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है। और आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ सख्ता यूज़ करते हैं। अचानक मौसम बदल गया, पूरा जुमला पूरा नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ी देर रुकने के लिए कॉमा लगाते हैं। अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवा चलने लगी, बादल घिर आए, अंधेरा छा गया। अब पूरा जब आखिर में क्या लगा दिया, आखिर में हमने ख़त्मा यानी फुल स्टॉप लगा दिया। आगे देखिए सवालिया किस तरह से बना, तुम दिल्ली कब आओगे, सवालिया जुमला है, ठीक है। आखिर में क्या, सवालिया निशान लगा दिया आखिर में। शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहो। शाबाश के बाद ये जो अलामत लगती है ये क्या है, ये आपका निदाइया है, फिजाइया वाला है, ठीक है। इसी तरह मेहनत करते रहो, जिसको हम एक्सक्लेमेशन के नाम से जानते हैं। और कुछ मिसालें देखते हैं। चट्टानों की कई किस्में हैं, ठीक है। ये क्या है, आपका राब्ता है, कई किस्में हैं। अब उसकी वजाहत बयान करने के लिए इसको आप तफसील के नाम से भी जानते हैं, जैसे तहदार चट्टानें, आतिशी चट्टानें वगैरह, ठीक है। इस तरह से आप जो है किसका यूज़ करते हैं, राब्ता यानी कोलन का यूज़ करते हैं, यानी 2 डॉट का यूज़ करते हैं। जैसे नंगे सर, क्या है, सवालिया, ठीक है। तरलोचन ने किसी कदर बौखलाकर कहा, ठीक है। अब ये क्या है, किसी कदर बौखलाकर कहा, इसको किससे हमने बंद किया है बताइए, इसको वावैन से बंद किया है क्योंकि ये किसी का जुमला है। मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा, देख रहे हैं, उल्टा वाव करके बंद कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। उम्मीद है कि रुमूज़ औक़ाफ़ आपको समझ में आया। अभी तक समझ में आ रहा है तो लाइक नहीं किए हैं तो मेरे कहने से एक बार लाइक भी कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसी के साथ कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि वीडियो समझ में आ रही है या नहीं। इससे क्या है, आप जब फीडबैक देंगे कि समझ में आ रही है तो पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है। अगर कहीं कुछ कमी लग रही उसको भी लिख रहे हैं तो पढ़ाने वाला उसमें सुधार करेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं इल्मे हिजा, ठीक है, यानी हर्फ का एराब से ज़ाहिर करना इल्मे हिजा कहलाता, आपने सुना होगा। इल्मे हिजा क्या है, हुरूफ को अलग अलग करके उनके हिज्जे करना, इस जानकारी का नाम इल्मे हिजा है, ठीक है। यानी कोई वर्ड लिखा है उसको अलग अलग करना। जिन हुरूफ से कोई ज़ुबान बनती है वो हुरूफ हिजा हैं, उनको हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं। हुरूफ हिजा, हुरूफ तहज्जी आप समझ गए। उर्दू में हुरूफ तहज्जी की तादाद 36, याद रख लीजिए कितनी है, 36 है। और अरबी में हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, 28 है, ठीक है। इन हुरूफ तहज्जी को हुरूफ मुफरदा भी कहते हैं, और इन हुरूफ मुफरदा के अलावा कुछ हुरूफ मुरक्कब भी हैं जिनकी तादाद 14 यानी 14 है। इस लिहाज से कुल उर्दू के हुरूफ कितने हुए, 50 हुए। ये सब गिनती है, याद रखिए, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। अब हम एक मर्तबा देख लेते हैं, जैसे अलिफ बा, अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे, ठीक है, समझ में आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 10 से यहाँ आगे देखते हैं। दाल, डाल, जाल, रा, ड़ा, जा, जा, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 हो गए इधर, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। सीन, शीन, जिसको बड़ी सीन हम कहते हैं, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़ा, आइन, गैन, फे, क़ाफ, ठीक है। 17 हो गए थे ना। आगे देख लेते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है। आगे और देख लेते हैं। काफ यानी छोटा काफ जो हलक से नहीं निकलता, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हे जिसको कहते हैं, और छोटी या यानी ये, या यानी छोटी या बड़ी या करके आपने पढ़ा होगा इससे पहले, ठीक है। तो ये 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 हो गए ना, ठीक है। और 36 प्लस 14, देखिए आपके 36 हुए टोटल, ठीक है। यहाँ बताया गया ना उर्दू में हुरूफ तहज्जी की तादाद 36 है, ठीक है। और 14 कितना है? 14 कौन से हैं? मुरक्कब वाले हैं। छः 4 10 हो गया, एक हासिल आपका बच रहा है, 3 1 4 1 5, टोटल 50 हो गए। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कितने हैं? 36, और मुरक्कब कितने हैं? 14, टोटल कितने हैं? 50। इस गिनती को याद रखिएगा, कभी कभी पूछे जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं उर्दू हरूफ की तकसीम। उर्दू हरूफ की तकसीम बनावट के लिहाज से हरूफ की 2 किस्में हैं, एक मुफरद एक मुरक्कब, ठीक है। हरूफ मुफरद अलिफ से कितना या तक, जिसको 36 अभी मैंने आपको टेबल में सारा दिखाया है, ठीक है। ए जो कि यहाँ नीचे दिया गया है, आपने टेबल में देख लिया, कोई ज़रूरत नहीं है। आगे मुरक्कब वाला हम देख लेते हैं, जो कि कितने हैं? 14, इसको आपने नहीं देखा था। जैसे भा, फा, ता, ठा, आखिर में हा जुड़ जाता, ठीक है। झा, छा, धा, ढा, ड़ा, खा, घा, ला, मा, ना, ठीक है। इन हरूफ को मुरक्कब, इन हरूफ मुरक्कब को हिकारी हरूफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिकारी, क्योंकि आखिर में क्या मिला है? हा मिला हुआ है, ठीक है। तमाम हरूफ मुफरद व मुरक्कब की तादाद कितनी है? 50, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। अब हरूफ मुफरद की तकसीम देख लेते हैं। मुफरद में 2 हैं, एक है हरूफ इल्लत, एक है हरूफ सही। हरूफ इल्लत कितना है? अलिफ, वाव, या 3 है। याद रखिएगा, हरूफ इल्लत कितने हैं? अलिफ, वाव, या। हरूफ इल्लत कभी कभी जो गिर जाते हैं, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। हरूफ सही उन हरूफ इल्लत के अलावा जितने हरूफ हैं सब क्या हैं? सही कहलाते हैं, ठीक है। तो कम याद कर लेंगे तो सही आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब हम हरूफ शमसी और हरूफ कमरी को ट्रिक के साथ समझेंगे, इसके बाद कभी भी हमारी गलती नहीं होगी। हरूफ शमसी की तादाद 14 है, और ये क्या है? ते, से, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वा, तो, ज़ा, लाम, नून, ठीक है। टोटल कितने हैं? 14। हरूफ कमरी की तादाद 13 यहाँ बताई गई है।
لیکن اگر الف کو شمار کریں گے تو اس کی بھی 14 ہو جائے گی. کتنی ہو جائے گی؟ 14. کیا ہے؟ بے، جیم، ہے، خ، عین، غین، فے، قاف، کاف، میم، واو، یا، واو، ہا، یا. اچھا، یہ حروف شمسی حروف قمری کو ہمیں جاننا کیوں ضروری ہے؟ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ حروف شمسی میں کیا کرتے ہیں. جیسے ہم لکھتے ہیں بڑی شین ہے نا، الشمس. حروف شمسی میں جب الف لام لگا کر لکھا جاتا ہے تو یہ جو لام ہے یہ جو ہے اس کا پروننسیشن، اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا ہے. جیسے الشمس کہیں گے، الشمس نہیں کہیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ اور القمری میں اور قمری حروف کیا ہوتے ہیں؟ اس میں جو لام ہے اس کو بھی پڑھا جاتا ہے. جیسے ہم پڑھیں گے القمر، 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 تو لام بھی پڑھا جا رہا ہے. لیکن الشمس میں کیا ہے؟ یہ لام پڑھا نہیں جا رہا. اس لیے شمسی اور قمری میں بنیادی فرق کوئی بھی پوچھ لے، آپ ٹیچر بننے جا رہے ہیں، کوئی بھی پوچھ لے تو آپ بتائیے گا جو شمسی ہوتے ہیں اس میں اگر الف لام کے ساتھ کوئی لفظ لکھا ہے تو لام کو نہیں پڑھتے ہیں. اور قمری میں کیا ہے؟ لام کو بھی پڑھا جاتا ہے. اب ہم حروف قمری کیا دیکھیں گے؟ حروف قمری کو ٹرک کے ساتھ سیکھیں گے. اس کو آپ رٹ لیجئے. حروف قمری کو اگر آپ رٹ لیں گے تو اگر آپ کے سوال بنتے ہیں کہ بتائیے اس میں سے کون حروف شمسی ہیں، کون حروف قمری ہیں، فٹافٹ آپ اس کو الگ کر لیں گے. اب یہ ٹرک کیا ہے؟ دیکھیے اس کو اس طرح سے یاد رکھیے گا. ابغ، ابغ، حجک، حجک، ابغ حجک، وخف، وخف، اقیمہ، اقیمہ. ہو گیا؟ میرے ساتھ 2 بار پڑھ لیجئے. ابغ حجک وخف اقیمہ، ابغ حجک وخف اقیمہ. اس میں آپ کے 14 جو حروف قمری میں نے شامل کر دیا. اگر الف کو نکالیں گے تو 13 ہو جائے گا. ایک مرتبہ گن لیجئے، دیکھیے صحیح ہے کہ نہیں. دیکھیے الف آ گیا، با آ گیا اور غین آ گیا. ہو گیا 3 نا. آگے کیا ہے؟ حج کا، بڑا ہا آ گیا، جیم آ گیا، کاف آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وخف، واو آ گیا، خا آ گیا، فا آ گیا. ٹھیک ہے. میں ایک میں لکھ دیا، خا، فا. ٹھیک ہے. یہاں 3، یہاں 3، یہاں 3. یہ آگے کیا ہے؟ عقیمہ، عقیمہ. عقیمہ وہ لوگوں کا نام بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے. عقیمہ اس وزن پہ نام رہتا ہے. عین، قاف، یا، میم اور ہا. اب جوڑیے، دیکھیے 14 ہو رہے ہیں. اس میں 3، اس میں 3، اس میں 3، اس میں کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5. 5 ہو گئے نا. 5 + 3 + 3 + 3. جوڑیے 5 اور 3 3 3 6 3 3 کا 9. 9 ادھر آ گئے اور ادھر 5 آ گئے. اور 9 + 5 کتنے آئے آپ کے؟ 14. 14 قمری ہم نے دیکھ لیا. بس اتنا ہی آپ یاد رکھ لیجئے. ابغ حجک وخف اقیمہ. آپ کے سارے حروف قمری یاد ہو گئے. اس کے علاوہ جتنے ہیں حروف شمسی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ٹرک اچھی لگی تو ایک مرتبہ لائک کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اب آگے ہے تلفظ، اعراب، حرکت و جزم کس کو کہتے ہیں. ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ریویژن ہو جائے گا. لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کو تلفظ کہتے ہیں. صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اس کو تلفظ کہیں گے.
حروف سے لفظ اور لفظ سے الفاظ اور الفاظ سے جملے، جملوں سے مضمون بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح تلفظ کے لیے اعراب کا جاننا ضروری ہے۔ اب اعراب کیا ہے دیکھیے، ان حرکات یا علامت کو کہتے ہیں جن کی مدد سے حروف کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ اعراب زبر، زیر، پیش، جزم کو کہتے ہیں اور تشدید، مد، تنوین کو علامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرکت کیا ہے؟ زبر، زیر، پیش کو حرکت کہتے ہیں اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جزم کیا ہے؟ جزم سکون کو کہتے ہیں، جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یا یوں کہو کہ سکون کو جزم کہتے ہیں اور جس حرف پر جزم ہو اسے مجزوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے آپ زبر، زیر، پیش۔ زبر کو ہم فتحہ کہتے ہیں، زیر کو ہم کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو ہم ضمہ کہتے ہیں اور سکون کو ہم جزم کے نام سے جانتے ہیں۔ جس حرف پر زبر یعنی فتحہ ہو اس کو مفتوح، جس حرف پر زیر ہو اس کو کسرہ یعنی مکسور، جس حرف پر پیش ہو اس کا ضمہ یعنی مضموم کے نام سے جانتے ہیں، جس حرف پر سکون جزم ہو اس کو مجزوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مفتوح کی مثال جیسے اکرم، الف کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ عاطف، عین کیا ہے؟ فتحہ ہے۔ مکسور کی مثال جیسے بلقیس، با پہ ہے کسرہ ہے، جیسے جبریل۔ مضموم کی مثال الفت، ٹھیک ہے، محبت، یہ سب کیا ہے؟ شروع میں میم پہ یا الف پہ کیا ہے؟ پیش ہے۔ مجزوم کی مثال جیسے وسیم، تو یا پہ کیا ہے؟ سکون ہے یعنی جزم ہے۔ معصوم، عین پہ کیا ہے؟ ساکن یعنی جزم ہے، ٹھیک ہے۔ علامت و تنوین کے بارے میں اور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ علامتیں کیا ہے؟ مد، جیسے اے ہے، اے والا، یہ علامت ہے، اسے لمبا کر کے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور جس حرف پر مد ہو اسے ممدودہ کہتے ہیں۔ تشدید کیا ہے؟ یہ علامت ہے، تشدید والا حرف دو بار پڑھا جاتا ہے، پہلے ساکن دوسری بار متحرک، ٹھیک ہے، پڑھا جاتا ہے اور جس حرف پر تشدید لگی ہو اسے ہم مشدود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنوین کیا ہے؟ یہ علامت ہے، یہ لفظ کے آخر میں نون نہ ہونے پر بھی، ہوتے ہوئے بھی نون کی آواز پیدا کرتی ہے اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ ممدودہ کی مثال جیسے آمد، ٹھیک ہے، میں الف ممدودہ ہے، عام میں الف ممدودہ ہے۔ مشدد کی مثال جیسے غفار، ستار، یہ سب کیا ہے؟ مشدد کی مثال ہے۔ منون کی مثال جیسے احتیاطاً، نون کی آواز آ رہی نا، جیسے کہا فوراً، نون کی آواز آ رہی، اسی کو کیا کہیں گے؟ منون کہیں گے، ٹھیک ہے۔ الف مکسورہ کیا ہے؟ جس حرف کے اوپر کھڑا زبر لگا ہو، کھڑا زیر لگا ہو، جیسے عیسیٰ، مرتضی، اعلی، ادنی وغیرہ۔ جدید املا میں ان جیسے الفاظ کو اب اعلی یعنی الف کے ساتھ لکھ رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، ادنی، مرتضی لکھا جانے لگا ہے۔ تھوڑا سا دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہائے ملفوظہ، اس ہا کو کہتے ہیں جس کا تلفظ صاف طور پہ کیا جیسے واہ، ہا کا تلفظ پوری طرح، آہ، شاہ، گاہ وغیرہ۔ ہائے مختفی، اسے ہائے خفی بھی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس کا تلفظ صاف طور پر نہ ہو، وہ اپنے سے پہلی حرکت کو ظاہر کرتے، جیسے نالہ، ہا کا تھوڑا سا اس کی بو آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مکہ، جامع، شانہ وغیرہ۔ واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ واو معروف وہ واو ہے جو الٹے پیش کی طرح خوب ظاہر کر کے پڑھی جائے، جیسے شعور، واو کو خوب ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، حضور، نور، چوٹی وغیرہ۔ مجہول، واو مجہول کیا ہے؟ واو مجہول ہے جو الٹے پیش کے ساتھ نہ پڑھی جائے بلکہ پیش کے ساتھ خوب ظاہر کر کے نہ پڑھی، جیسے چور، شور یعنی توڑ، کوڑا وغیرہ، یعنی واو خوب کس کے یعنی ظاہر کر کے نہیں پڑھی جا رہی۔ واو معدولہ، اسے واو یعنی متروکہ بھی کہتے ہیں، وہ واو جو لکھنے میں تو آئے لیکن پڑھنے میں تھوڑا سا اس کی بو آئے لیکن صحیح سے پڑھا نہ جائے، جیسے خوش آمدید، خوش آمدید، تو خوش آمدید نہیں پڑھتے نا، یہی واو معدولہ ہے۔ جیسے
درخواست نہیں پڑھتے، درخواست۔ واو کیا ہے؟ واو ہلکی سی اس کی بو آ سکتی ہے، درخواست۔ واو کیا ہے؟ واو معدولہ ہے۔ خواب، خواب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خود نہیں پڑھتے، خود پڑھتے ہیں، میں واو معدولہ ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے ہیں یا معروف، یا مجہول بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یا معروف وہ یا ہے جس سے پہلے زیر ہو اور خوب ظاہر کر کے پڑھی جائے، یا یوں کہے کہ چھوٹی یا کو یا معروف کہہ سکتے ہیں۔ دو یا تھی، ایک چھوٹی ایک بڑی، جیسے نبی تو یا کو خوب ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے نا، تو معروف ہوا۔ یا مجہول وہ ہے، وہ یا ہے یعنی جو بڑی یا رہتی ہے جس سے پہلے زیر ہو اور خوب ظاہر ہو کر نہ پڑھی جائے، یا یوں کہو کہ یعنی بڑی یا گویا مجہول کہتے ہیں، جیسے بڑے، کھڑے وغیرہ میں کیا ہے؟ یا مجہول ہے۔ تھوڑا سا کچھ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر یا معروف یا مجہول کسی لفظ کے بیچ میں آ جائیں تو ان کی پہچان کے لیے نیچے زیر یا کھڑا زیر لگا دیتے ہیں۔ یا معروف کی پہچان کے لیے کھڑا زیر، یا مجہول کے لیے زیر لگا دیتے ہیں، جیسے کیلا تو چھوٹی یا کے لیے نیچے ایسے کھڑا لگاتے ہیں، لیکن آج کل چلن میں بہت کم ہے۔ اور اگر بڑی یا ہے تو کیلا، ٹھیک ہے، وہاں کے یہاں صرف زیر لگائیں گے۔ نوٹ: اگر کسی لفظ میں ایک ساکن حرف کے بعد دوسرا غیر متحرک حرف آ جائے تو اس حالت کو وقف کہتے ہیں، اور غیر متحرک حرف کو موقوف کہتے ہیں، جیسے نسیم میں حالت تو وقف کی ہے، اور یا کیا ہے؟ ساکن، ٹھیک ہے۔ نسی یا کیا ہے؟ ساکن، جس کو آپ جزم کہیں گے۔ اور میم کیا ہے؟ نسیم، میم پہ رک رہے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ موقوف ہے، جو کہ غیر متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اردو کے مبادیات کچھ جو تھے امپورٹنٹ، اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اگلی کلاس میں مبادیات سے تعلق سے کچھ سوال جواب کی شکل میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو بس آج کی کلاس اگر اچھی لگی تو آپ لائک کر کے ضرور جائیں، کمنٹ کریں، اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور نظام اکیڈمی 22 ٹیلی گرام چینل کی لنک ہے، اس پر کلک کر کے جڑ جائیں۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، اگلے کلاس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔